Now we are on page number 19. Did you know? It is said that Raja Bhoj, he was from his time was from 1016 to 1053 CE, suffered from brain tumor in his early age. In the early 10th century, he was operated on by two brothers from Ujjaini who sent him into a controlled coma using a medicine called Sammohini. They opened his skull and removed his tumor. राजा भोज survived this surgery and lived a healthy life. अभी ऐसा बताया जाता है कि राजा भोज को ब्रेन ट्यूमर था जब वो छोटे थे तब। फिर 10th सेंचुरी में उस ज़माने में उनका ऑपरेशन हुआ था। उज्जैनी के दो भाई थे, उन्होंने उनको कंट्रोल कोमा यानी सम्मोहन क्रिया किया था और सम्मोहन यानी अपने वश में करके उसको कोमा में सुला के एकदम कोमा में भेजकर उसका स्कल ओपन किया था और उसमें से उन्होंने ट्यूमर और जो गांठ होती है ट्यूमर उसको निकाल दिया था। राजा भोज इस सर्जरी के बाद हेल्दी लाइफ जिए थे। The rulers of the Pal dynasty and Sen dynasty ruled in Bihar and Bengal. The rulers of the Pal dynasty had added Pal to their name, so their dynasty was known as the Pal dynasty. With the help of your teacher and the library, find out more information about the rulers of the Pal dynasty. अभी जो Pal dynasty और Sen dynasty के rulers है, Pal dynasty they ruled in Bihar and Sen dynasty ruled in Bengal. एंड द रूलर्स ये लोग अपने नेम के पीछे पाल लगाते थे, यानी उनका नाम से ही पता चल जाता था कि ये पाल डायनेस्टी के लोग हैं. सो एज वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल यू विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सो वी विल डू इट व्हेन वी गो टू स्कूल. Many Rajput rulers of the Chauhan or Chaman dynasty ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century CE. Of them, one branch ruled over Shakambhari, a place near Lake Sambar, which is to the north of Ajmer. In the beginning of the 8th century, Ajay Raj ascended the throne of Shakambhari in the 12th century. He established the city of Ajay Meru, which later came to be known as Ajmer. अभी राजपूत रूलर्स जो थे वो चौहान या चामन डायनेस्टी के, वो लोगों ने वेरियस राजस्थान के अलग अलग एरिया में 7th और 8th सेंचुरी में जीत ली और रूल कर रहे थे. और उनमें से एक ब्रांच था वो शाकंभरी एरिया में था, और सांबर लेक जो राजस्थान का फेमस लेक है वहाँ का जो अजमेर के नॉर्थ में है वहाँ पे है, तो वहाँ पे रूल करते थे. और 8th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अजयराज करके एक राजा शाकंभरी के थ्रोन पे आए, और 12th सेंचुरी उन्होंने अपना राज्य एक अजय मेरू करके सिटी बनाया, और आज वो अजमेर के नाम से जाना जाता है. द रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली, द कैपिटल ऑफ द तोमर किंग्स, एंड एस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी. पृथ्वीराज III और राज पिथोरा वॉज ए पावरफुल रूलर ऑफ Chauhan dynasty. He is unparalleled in the history of India. Many stories and folk songs have been written about his bravery on the battlefield. Chand Bardai, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan's valor in the epic Prithviraj Raso. We shall learn about the battle between Prithviraj Chauhan and Shahabuddin Muhammad Ghori later. Now see, Chauhan dynasty के rulers जो थे उन्होंने दिल्ली अपने कब्जे में कर लिया, और तोमर राजा कैपिटल ऑफ द तोमर किंग्स और एस्टैब्लिश, और वहाँ पे अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर दी. और पृथ्वीराज III और राज पिथोरा वहाँ के बहुत पावरफुल रूलर्स थे चौहान डायनेस्टी के, और ही इज़ अनपैरेलल इन द हिस्ट्री, यानी उसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता, इतना वो पावरफुल था. और उसके बारे में बहुत से स्टोरीज़ और गाने लिखे गए हैं, बनाए गए हैं जो उसकी ब्रेवरी को बताते हैं. और चांद बरडाई एक फेमस पोएट है, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बहादुरी के बारे में एक कविता जैसा बड़ी सी लिखा है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, एपिक लिखा है. और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और शाहबुद्दीन घोरी की लड़ाई के बारे में आगे सीखेंगे. द गोहिल्स और गोहिल्स ऑफ मेवार, हु वेर लेटर नोन एज सिसोदिया राजपूत्स, hold a unique position in medieval history. It is said that Bappa Raval established this dynasty.
During the Rajput era, the Chedi dynasty ruled over Jabalpur, which is to the south of river Narmada, that is Madhya Pradesh. It was known as the Chedi dynasty of Kalchuri, with its capital at Tripuri, present-day Tevar. In the medieval era in Gujarat, the Rajput dynasties of the Chavdas, followed by the Solankis, ruled over Anhilwad Patan. There were many valiant rulers of this dynasty, about whom we will study later. Now, गोहिल या गोहिल्स जो मेवाड़ के हैं, वो लोग बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने जाते थे. उनका एक हिस्ट्री में अलग ही स्थान है और ये भी बताया जाता है कि बापा रावल ने इस डायनेस्टी की स्थापना की थी, गोहिल और गोहिल की. और राजपूत एरा में चेदी डायनेस्टी जबलपुर पे रूल कर रही थी और साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, जो आज मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर है वहाँ का एरिया है. और चेदी डायनेस्टी में उसका कैपिटल इट वॉज नोन एज द चेडी डायनेस्टी ऑफ कालचुरी विथ इट्स कैपिटल एट त्रिपुरी. उसका कैपिटल यानी राजधानी त्रिपुरी, आज जो तेवर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे था. इन द मिडिवल एरा ऑफ गुजरात, और गुजरात के में चावड़ास ने फॉलोड, उसके बाद सोलंकी आए और उन्होंने अनहिलवाड़ पाटन पे रूल किया. और बहुत पावरफुल किंग्स के बारे में उसमें भी है, जैसे हाँ आगे के लेसन्स में हम वो भी सीखेंगे. नाउ साउथ इंडिया. ड्यूरिंग द राजपूत एरा we have studied all about North India. Now we are going to South India. During the Rajput era, many big and small states were established in South India. After the demise of Pulkeshi II, his vast empire disintegrated into smaller states. The reign of many rulers of the Chalukya dynasty is noteworthy. The kingdoms of the Pallava and the Chola are also included in the states of South India. Narasimhavarma was a strong ruler of the Pallava dynasty. The emperors of this dynasty were lovers of art and literature. The Kailashnath temple of Kanchi is the best example of Pallava architecture. अभी नॉर्थ के बारे में सब सीख लिया. नाउ अबाउट साउथ. राजपूत एरा में बहुत बड़े और छोटे स्टेट्स थे जो साउथ इंडिया में थे, और पुलकेशी II के मरने के बाद उसका जो एम्पायर बहुत बड़ा था वो छोटे छोटे हिस्सों में बट गया. और द रेन ऑफ मैनी रूलर्स पर छोटे छोटे एरिया बनने के बाद अलग अलग राजा भी बन गए थे. और पल्लवा और चोला डायनेस्टी आर इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पल्लवा और चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया के स्टेट्स में इंक्लूड होता है. और नरसिंहवर्मा एक बहुत पावरफुल किंग थे पल्लवा डायनेस्टी के. और द एम्परर्स वो आर्ट और लिटरेचर के बहुत शौकीन थे. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची में है. वहाँ बहुत सुंदर आर्किटेक्चर किया गया है. Now we are on page 20. The Chola dynasty also ruled in the south. Tanjore was their capital. The rulers of Chola dynasty attacked Ceylon and annexed many territories. The Cholas had a powerful navy because of which they could attack countries even across the sea. Rajaraj I adopted a very systematic way of administration in his state. He started with the measurement of land and local self-government. अभी चोला डायनेस्टी साउथ में जो रूल करती थी, तंजौर उसका कैपिटल था. और जो वहाँ के रूलर्स थे वो अटैक सीलोन यानी श्रीलंका, और वहाँ के बहुत से एरिया उन्होंने कवर कर लिए थे. और चोलास इतने पावरफुल, उनके पास इतनी पावरफुल नेवल आर्मी थी, यानी जो पानी में भी जाके लड़ाई कर सकते हैं ऐसे थे. इसकी वजह से उन्होंने दरिया पार करके भी अटैक किया. ओनली लैंड एरिया नहीं, वाटर एरिया से जाके भी कवर किया. और जो राजा है राजराज I, उसका एक काम करने का अच्छा तरीका था. और उसने क्या किया, लैंड को मेजर, किसके पास कितनी ज़मीन है वो मेजर करके सारे रिकॉर्ड रखता था, यानी पता चले कि किसके पास कितना एरिया है. और उसी टाइम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी स्टार्ट हुआ. ओके. Now, apart from them, the Rashtrakoot, Chera and Pandya dynasties also ruled in South India. So, it is evident that many dynasties ruled at different places during the Rajput age. There were frequent battles between them to annex each other's areas. Due to this internal conflicts, there was no unity among them, and foreign invaders took
advantage of this, and we will discuss the administration and culture during the Rajput age in the next unit. Now see children, राष्ट्रकूट, चेरा, पंड्या डायनेस्टीज ये सब साउथ में रूल कर रहे थे, और ये भी पता है कि वहाँ अलग अलग एरिया में वो लोग रूल कर रहे थे, लेकिन बार बार लड़ाई करना, आपस में झगड़ा करना, अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते थे, आपस में लड़ाई, भेदभाव, इसकी वजह से उनकी यूनिटी नहीं रही। और इसका फ़ायदा किसने उठाया? फॉरेन वाले ने उठाया। फॉरेन इन्वेंशंस आके उन पर अटैक किया, फिर हमारे इंडिया पे उन लोगों का राज चलने लगा। सो वी विल डिस्कस इन द फर्दर लेसन्स अबाउट द राजपूत एज। नाउ थिंग्स टू नो, रूलर्स ऑफ द राजपूत एज in the Rajput dynasty in medieval age. Utpal dynasty ruled in Kashmir. Salam, Harjar Varma, Vanmala Varma, etc. ruled in Kamrup, Assam. Nagbhat, 2. Devraj, Mihir Bhoj, Mahendrapal, etc. were the great rulers of Pratihar. See, ये अलग अलग डायनेस्टी के राजा के नाम है और डायनेस्टी के नाम है। उत्पल डायनेस्टी जो कश्मीर में थी, सालम, हरजर वर्मा, वनमाल वर्मा, ये सब कामरूप डायनेस्टी ये आसाम में है। देन नागभट्ट, 2. देवराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ये सारे प्रतिहारा। शाया डायनेस्टी रूल्ड इन गंधार, चंदेला in Bundelkhand. In the beginning, Tomar ruled in Dhilak. Today it is known as Delhi. Rashtrakut ruled South India. With the fall of Chalukya dynasty, Rashtrakut came to power. पहले राष्ट्रकूट साउथ इंडिया में थे, लेकिन चालुक्य का फॉल डाउन हुआ, वहाँ से राष्ट्रकूट ने यहाँ भी अटैक किया और वो एरिया ले लिया। राष्ट्रकूट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट और area. It is believed that the founder of the dynasty was an officer of that community, and hence the dynasty was named after him. Out of many rulers, Govind III was the most powerful king. In the 8th century, he established a powerful kingdom in the Deccan. राष्ट्रकूट मैंने जैसे बताया कि राष्ट्रकूट नाम किस पर से, एक वहाँ का एक बड़ा सा फाउंडर था, उसके नाम पर से ये नाम रखा गया। और बहुत सारे रूलर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल गोविंद III था। एंड पंड्यास ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। और पंड्या डायनेस्टी में ये कहा जाता है कि मेगास्थनीज जो ग्रीक ट्रैवलर था उसने ये बताया कि वहाँ पे फीमेल यानी लेडीज़ भी रूल करती थी। और इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक जो अशोक ने लिखा है उसमें भी बताया गया है कि पंड्यास बहुत पावरफुल थे। एंड पंड्यास रूल्ड इन प्रेजेंट डे ऑफ मदुराई एंड थिरुनेलवेली इन तमिलनाडु। आज जो मदुराई और तमिलनाडु बताया जाता है वहाँ पे वो लोग रूल करते थे, यानी साउथ में चेराज रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। एंड चेरा इज़ नोन एज केरला, आज वो केरला के नाम से जाना जाता है। एंड इन एंशिएंट टाइम केरला वॉज पार्ट ऑफ तमिल स्टेट। पहले केरला था वो तमिलनाडु का पार्ट था, बाद में अलग हो गए। बाद में केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है। एंड लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड एंड केपल पुत्र राज्य इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। देन अथन II was the first strong ruler of this Kepalputra Rajya, and Cheran Setungwan was a powerful ruler of this dynasty. Okay, now things to know. डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ पे आपने सारी नॉर्थ की मिडिवल एज की राजपूत की डायनेस्टीज देखी। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट साउथ। दैट इज ऑल अबाउट नॉर्थ, दिस इज अबाउट साउथ। चालुक्याज रूल्ड वातापी और बदामी, राष्ट्रकूट रूल्ड मान्यखेता, होयसला रूल्ड द्वार समुद्र, यादव रूल्ड देवगिरी, एंड चोलाज रूल्ड तंजौर। नाउ pride of Rajput rulers. Rajputs were very brave. They felt proud to give up their lives for their country, to die but never fear, to protect those who seek refuge, to speak the truth and fight for truth. Were their special traits? Rajput women, Rajputani, were known for their chastity and fearlessness. They sent their husbands, sons and brothers to the battlefield with a smiling face. They were so brave that if need be, they would fight on the battlefield. They preferred Johar to burn alive
if their husbands were defeated or attained martyrdom in war. The heroic stories of Rajput age are engraved in golden letters in the history of India. राजपूत बहुत ब्रेव होते हैं और वो हमें अपनी जान देने के लिए भी रेडी रहते हैं. उनको गर्व होता है कि हमारे देश के लिए हमने अपनी जान दी और डरते नहीं है किसी से भी. कोई उनकी शरण में आए मदद मांगने तो उनको मदद भी करते हैं. वो हमेशा सच बोलते हैं और सच के लिए लड़ाई करते हैं. ये उनकी खास बात है. और वहाँ राजपूत वुमन यानी राजपूतानी वो भी बहुत निडर होती है और अपने हस्बैंड, बेटा, भाई किसी को भी लड़ाई के मैदान में हंसते हुए भेज देती है और बहुत ब्रेव होती है. ज़रूरत पड़े तो खुद भी जाती है. और अगर उनका हस्बैंड लड़ाई करते करते शहीद हो जाए तो वो अपने पति के साथ जिंदा जल जाती है, जिसको जौहर बोला जाता है. और वो बहुत ब्रेव लेडीज़ होती हैं. इस तरह हमको पता चलता है कि राजपूत के लोग मीन्स द पीपल ऑफ राजपूत एज वेर वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड गुड पीपल ऑल्सो. So children, with this we complete lesson number 4 in your textbook.